सब टाइटल भी ऐसा लिखते हो। देना बेटा, टोपी देना पापा को। खाना खाते समय टोपी पहनने से सवाब है बोलते, जैसे औरतों को दुपट्टा पहनते हैं। पहनो। इकबाल को तो बेकार है, मछली की तरह नफरत है बोला सिर को टोपी पहनने से। नमाज के दौरान भी नहीं पहनता है। मैं कौन बार बार बोलेगा। मर्द औरत दोनों को सिर पे टोपी दुपट्टा होना ज़रूरी है, खासकर खाना परोसने वक्त। घर की माँ, औरत, बहन, बेटी सिर पे दुपट्टा हो के खाना परोसेंगे भी, उसमें सवाब और बरकत। बेपर्दा हो के मैं यहाँ से पूरे यहाँ तक दिखा दिया। सब्जी आलू बहुत टेस्टी बनी है चावल के साथ, और शहरी सादा ही बनाया। चाय इधर है, उम्दा चाय। आज एक बात समझ आ गई, इस दुनिया में उन्हीं की तरक्की होते हैं जो अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया वालों को खुश कराते हैं। उन्हीं की जीत होती है इस दुनिया में। इतने अच्छी तरह से समझ आ गई सच में, लेकिन क्यों अल्लाह को नाराज़ कराएंगे। मैं तो जितना पीछे चली जाऊं तब भी अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकती। मेरे रब मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए बस, चाहे मैं जैसा भी हूँ। दुनिया वालों के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगी। दुनियावी वाहवाही चाहिए नहीं, चाहे दुनिया सिर पे रोन डाले तब भी। हस्बैंड जी को खिला रही हूँ। सिंपल सा आलू का डिश बनाया था, और भी एक सब्ज़ी और दो बनाए थे, चिकन में। फिर शहरी आज इन्होंने बोला टाइम भी कम था इस तरह। थोड़ा लो ज़्यादा हो गए ना, चावल ज़ाया करना बहुत बुरा लगता है। थोड़ा देना सब्ज़ी इधर, मैं लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। आज एकदम ऑर्गेनिक वे में ले रही हूँ। देखिए थोड़ा सा एक तो लो, एक लुम्मा खाओ जिगर। चावल ज़ाया कभी नहीं कीजिएगा, चावल बददुआ देंगे। एक एक दाना चावल का। चावल
کی بہت بربادی ہوئی نا یہاں پر بھی، اسی لیے اب جو پنجابی چاول ملتے تھے پہلے تو راشن میں اتنا اچھا، وہ بھی اب بہت کم کر دیے ہیں۔ اب چاول کے لیے ترستے ہیں، خریدنا پڑتا ہے مہنگا، کیونکہ بے قدری جہاں ہو نا وہاں لاٹھی پڑتی ہے، اور آزمائش اللہ کا سچ میں ان پہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نزدیک ہو، کیونکہ دل میں صبر بھی پھر وہی ڈالتے ہیں، اس لیے باقی اٹھ پٹانگ حرکت کرنے والوں کے بول بالا ہوتا ہے آج، اور اللہ کے کہے ہوئے احکامات پر تو کوئی نہیں، سب دکھاوا ہے دنیا والوں کو، چاہے شادی ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس دنیا میں انسان گزرتے بھی ہے تو اس کے بعد بھی اس دنیا میں دکھاوا چلتا ہے، لوگوں کو خوش کرانے کے لیے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہ ہو وہی کام کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں لوگ بہت ایسے حرکت کرتے ہیں جو بہت گناہ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ صرف دکھاوا دکھاوا دکھاوا، اور لوگوں کو وہی پسند بھی آتا ہے، لوگوں کے پسند ناپسند سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کے پسند کے ساتھ مطلب ہے، لوگ چاہیں باہر میں ہے نا، تو ہماری سحری اس طرح سے ہو گئی اور پلیٹ پورا چٹ، سجا وجا کے دکھانا بالکل میں نے ترک کیا ہے، افطاری ہو یا سحری دونوں، کیونکہ کچھ لوگ دیکھ کے پھر ان کو کھانے کے لالچ پڑتے ہیں، تو دے تو نہیں سکتے، پھر گناہ ہے، اس لیے سادہ سیدھا کھائیے اور پلیٹ کو صاف کیجیے اور انگلیوں کو چاٹیے، سنت ہے، بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک کپ چائے ہے جس کو پئیں گے بسم اللہ کرتے ہوئے، اور آج کا جو سحری ہے یہ اللہ قبول کرے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ جو مزہ سیدھا سادہ زندگی گزارنے میں ہے نا، وہ اس چیز میں نہیں ہے، جو ہائی فائی لوگ خود کو کچھ سمجھتے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں ان کو سکون نہیں ہے، اور جن کے پاس چھوٹا سا گھر ہو یا پھر وہ کرائے پر بھی کیوں نہ رہتا ہو، سکون بہت ہے، آرام بہت ہے، لوگ جلتے ہیں ان سے جن کو رہن سہن آتا ہو، باقی اصلی گھر تو سب کا 2 گز زمین کے نیچے ہے، وہاں سب کو جانا ہے اپنے نام اعمال کے ساتھ، اور سب سے بڑی گناہ کسی کا دل توڑنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو وعدہ کر کے پورا نہیں کرنا، کسی کو تماشکین بن کے تماشا دیکھنا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بننا، انسنی کرنا، بہت بری بات ہے۔ اور سحری افطار کے ٹائم دل کے اندر سے دعا بہت نکلتی ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ بہت ہی صبر کا جو ہے نا وہ بھی نکلتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی اللہ رب العزت ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان جیسا زندگی گزر بسر کرنے کے توفیق نصیب عطا فرمائے، حلال کی روزی روٹی ہو، اور باقی دنیا والوں کو خوش کرانے کے لیے کچھ ایسا کام نہ کرے جو اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کام کیجیے، جو بھی بڑا چھوٹا جو بھی کام ہو، باقی اللہ کو خوش کرتے کرتے انسان بہت پیچھے رہ جائیں گے، بے گھر ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوں گے، لیکن جینے کا اصول آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کی زندگی کو پسند فرمائے ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی خوبصورت ہونی چاہیے، صاف صفائی کے ساتھ، باقی نیت پر دار مدار ہے۔
जितना भी अमल करे, तहज्जुद गुजार क्यों ना हो, नमाज की पाबंद क्यों ना हो, सब कुछ हो, लेकिन नीयत में उसके खोट हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उसके कोई भी नाम अमाल कबूल नहीं होते। और साथ ही साथ जो कटा रहमी करके बैठे होते हैं उनके बात नहीं करना, बातचीत नहीं करना, गिना रखना, गैबत करना, दूसरों को तहमत लगाना। आज तो दुनिया में मियाँ बीवी राज़ी खुशी रह रहे हो या फिर कोई लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हो, वो भी लोग देख नहीं सकते हैं। तो फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत कभी ना उनको खुश कराने के लिए कुछ 2-3 बातें ऐसे झूठी मोटी भी बोल के, मैंने भी देखा ये चीज़, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ बहुत अफसोस हुआ मुझे कि ऐसा क्यों बोल के। मतलब ऐसा मत कीजिए, सच में अच्छी बात नहीं होती है। सबको खुश देखने की नीयत रखिए और अपने आप से भी खुश रहिए और नदामत में रहिए। अपने औकात को कभी नहीं भूलिए। वो औकात नहीं जो इस दुनिया के रुपया पैसे, गाड़ी बंगला, मोटर, नौकर चाकर, ये नहीं। इंसान की औकात वो कहते हैं जिसमें नदामत ना हो। और जो इंसान अच्छे नहीं होते हैं, मतलब हसदी होते हैं, खासकर गहबती, वो औकात जो अपने अंदर जो पला हुआ है उसे ज़रूर टिंडोलिए और उसे चेक कीजिए। कहते हैं ना रियलिटी चेक, वो ज़रूर कीजिए अपने अंदर। बाकी बस आज अब आज 19th है ना रोज़ा 20। फिर बस अब 10 दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद लैलतुल क़द्र की रात 21वीं से शुरू हो जाएंगे। फिर दुआ मांगी खूब, और जिसके दिल में मैं तो खूब दुआ मांगती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और मेरी सब बस वही बात है। बाकी अपने अपनी नियतों को साफ रखना, और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। और बस ग़ीबत मत कीजिए, है ना। अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो उसका मतलब ख्याल कीजिए। बाकी कोई नहीं, बाकी दिल में बहुत गम है, दर्द है, रंज है, फ़िक्र है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया वालों को क्यों बताना है? बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि अल्लाह है, उसे बताएंगे, है ना। जब अल्लाह को बताएंगे तो वो कभी हमें ज़मीन पे नहीं रखेंगे, वो हमें मतलब लिमिटेड रखेंगे, लेकिन हमसे लोग जलेंगे, हमें दूसरों को जलने की ज़रूरत नहीं होगी। और दुआएं तो मैं इतना मांगती हूँ कि मेरे सब्र की आह भी लग रहे हैं, लगते भी हैं, देर से सही जल्दी से सही मेरे नज़रों के सामने दिखने को भी मिलता है। तो लेकिन अल्लाह तो सबसे रहम करने वाले हैं। अल्लाह क्यों उनको बुरा करेंगे जो अच्छा हो के बुरा उन पे अगर हो तो तब तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अल्लाह की लाठी जो बे आवाज़ से बोलते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं। किसी मज़लूम को ज़्यादा जुल्म करोगे तो उसकी सब्र की आह ज़रूर लगेंगे। ये वो नहीं है कि बद्दुआ दिया तो बद्दुआ लगा, नज़र लगा, नहीं। ज़्यादा सब्र करते हैं ना, मेरे दिल में तो बहुत सब्र की मतलब लहरें दौड़ रहे हर वक्त। मैं सब्र बहुत करती हूँ। तो इसीलिए नमाज़ पढ़िए, नमाज नहीं पढ़िए, वो अल्लाह और आपके दरमियान की बात है, जो भी अमल इबादत हो, लेकिन नीयत को साफ़ रखिए और किसी और लोगों का दिल मत दुखाइए। इंडिविजुअल इंसान आपस में बहुत ही तो यही है बात। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत करे। तो उनको उतना, इनको ये बादशाह का पेट भरा है, बहुत खाता है, तो बिल्लियों को पाला है तो फिर इनको भी खाना वाना देना होता है यार। खुद नहीं खाएंगे तो इनको देंगे ज़रूर। ये है बिल्ली के लिए मीट बड़े का, बॉईल करके फिर काट के इस तरह देते हैं। अभी वो जो 2 डिलीवरी दिया ना बिल्ली, उनको अच्छा डाइट देना पड़ता है क्योंकि वो दूध देंगे। खोलो, अच्छा ये कैंची इधर है, इनके लिए फिर ये देना पड़ता है। 10 kg वाला नहीं मिले हैं तो 5 kg वाले मिले हैं। ये ना रोज़ का
कंपनी का अच्छा होता है, अच्छा मानते हैं। अल्लाह यही काट दिया है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये देखिए इस तरह होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। जैसे ना एक चीज़ होता है वो हमारे पहाड़ में मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किनीमा, उसी जैसा मुशक है। ये देखिए ये इनको देना होता है। अब हमने सहरी खाए, इनको भी सहरी के टाइम खाना ज़रूरी होता है। और इनको फिर चिकन देना होता है बाद में, चिकन फिश। तो खर्चा बहुत है बिल्ली को, लेकिन हम तो घर में बना के भी इसके साथ ना सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं, इसके साथ ट्रीट भी देते हैं, लेकिन घर में थोड़ा मेहनत से बनाते हैं इनके लिए अलग से, फिर वो किफ़ायत होते हैं। फिर उसके लिए टाइम चाहिए और केयर चाहिए। ये बांधो। तो इसीलिए देखिए अब ये यहाँ पे ये नहीं खाएगा, ये पर्शियन ये नहीं खाते, ये चिकन फिश खाते हैं और थोड़ा मेहनत इनके लिए करना पड़ता है। तो इंसाफ हर एक के लिए होना चाहिए, भले ही इंसान हम कम खाए कुछ खाए, लेकिन ये बेज़बान है तो इनका केयर करना है। लोग सोचते हैं ना आसान होंगे, हमको दे दो बिल्ली, ये दे दो। आसान नहीं होते, बहुत मुश्किल काम होता है। फिर हमेशा हमेशा ही उसी काम के पीछे लगे रहना है। ओके दिन लाइट गया तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।